we were doing electrolysis of active electrodes. उससे मैंने बस ये बताया था कि the electrode this time is not made from an unreactive or a inert substance. ठीक है, graphite या फिर platinum से नहीं बना होता. It's actually made from a substance that is kind of very or slightly reactive. और reactive का मतलब है it would be made from a metal which likes to lose electrons, right? तो cathode के ऊपर where you have to gain electrons उसका कोई role नहीं है. It does nothing क्योंकि metals they don't like to gain electrons. तो वही पुराना वाला केस होता था कि वाटर का H+1 और कॉपर 2+ who's going to gain electrons. आप रिएक्टिविटी चीज देख के डिसाइड करते थे. और दूसरी साइड पे who's going to lose electrons, तो ये दोनों आयंस जो होते थे बच जाते थे सोल्यूशन के. It would be the metal electrode that would start losing electrons. Copper would be the one that would start producing electrons, and it would start forming copper 2+ ions, और वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता था. इसका मैंने एप्लीकेशन बताई थी कि इट्स यूज फॉर प्योरीफाइंग कॉपर के एनोड के ऊपर इम्प्योर मेटल रखते हो. ठीक है, सर हमने डिटेल में पढ़ा था कि इम्प्योर मेटल इधर होगा ताकि वो डिसॉल्व हो जाए. इट वुड स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट वुड स्टार्ट फॉर्मिंग आयंस. आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, एंड बिकॉज दे आर पॉजिटिव आयंस दे वुड गो टू द अदर साइड वेयर दे वुड स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो प्योर कॉपर इस साइड पे बनना शुरू हो जाएगा. ऑल द इम्प्योरिटीज वुड बी लेफ्ट बिहाइंड. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अगर मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, तो you can change the cathode and put any object over here. It could be a spoon, it could be a watch, anything. तो उसकी top surface के ऊपर ना silver आके deposit हो जाएगा. Silver ions would gain electrons to form silver. और एनोड के ऊपर ना आप वो मेटल रखोगे जिससे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, which in this case is silver, ताकि वहां से सिल्वर आयंस प्रोड्यूस होते जाए. बैटरी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर से जाते रहेंगे बैटरी के पास, सिल्वर आयंस फॉर्म होते जाएंगे. देयर वुड बी अ कांस्टेंट increase of silver ions in the solution, and those silver ions would get attracted to the cathode where they would start gaining electrons to form silver back again. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है, ये सारों को क्लियर है? नूर, राफे, मिनाहिल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, so moving on to the हमजा, क्लियर था ये सारा? Yes, sir. I said, now moving on to the next thing. The next thing is we're going to talk about cells. Okay, what are cells? Because you're using a lot of cells. We use cells everywhere. और अब तो electric cars हो गए. Now cells, electrolysis is done. We're done with electrolysis. जब हम पास में पे करेंगे, अगर कोई एक आध चीज बीच में मिसिंग है तो वो हम फिर इसमें ऐड कर देंगे. Now cells are, first thing is they're opposite of electrolysis. ठीक है, it's opposite of electrolysis. What does that mean कि opposite of electrolysis? What it means is कि electrolysis के अंदर ना, ये मैं simple उसका बता देता हूँ कि opposite of electrolysis, what happens over here is कि chemical energy produces electrical energy. Electrolysis के अंदर opposite होता था. Electrolysis के अंदर ना the opposite would happen, that there would be electricity, there would be battery, there would be, मतलब इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. So electrical energy was there because of the battery, और उस electrical energy की वजह से there were reactions happening. There was an ion that was gaining electrons, there was something that was losing electrons. So electrical energy led to a chemical reaction. But now it's the opposite. Now you're going to have a chemical reaction, and that is going to produce electrical energy. Yani a cell actually produces current. It doesn't consume current. ठीक है? Is it, पहला part clear? Do you understand this? Hamza, is this clear? मरियम, clear है? सर सेल है क्या, मशीन को बोल रहे हैं? क्या? सर सेल है क्या, मतलब कि वो तो मैं बता देता स्ट्रक्चर? हूँ. अच्छा अच्छा, वो तो भी डिस्कस करते हैं. ये तो क्लियर है ना कि कॉन्सेप्ट के एक यस सर. केमिकल रिएक्शन होगा जिस वो इसका ऑपोजिट होगा कि यहाँ पे
मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्यों होता था? क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती थी, यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजती थी, इधर से इलेक्ट्रॉन्स वापस लेती थी, तो बैटरी की वजह से हो रहा था ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बिकॉज ऑफ दिस बैटरी देयर वाज अ रिएक्शन हैपनिंग। अब ऑपोजिट है, रिएक्शन पहले होगा और करंट बाद में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी सही वजह है। से करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, so how does that happen? The first one is let's call that a galvanic or an electrochemical cell. That's the first one. इसमें क्या होता है? इसमें what you do is कि metals में different reactivity होती है. So there is a more reactive metal. अच्छा, इसका मतलब है more reactive. More reactive metal का मतलब है metal क्या करता है? It likes to lose electrons. So if you have a more reactive metal, what's going to happen is that it's going to lose electrons, and it likes to lose electrons. It's going to lose a lot of electrons. Achha, so they like to lose electrons. Or there's unreactive metals. ठीक है, so less reactive metals. And remember, we have the reactivity Cs with us. They don't like to lose electrons, right? ये सारी कहानी है. Like gold doesn't like to lose electrons. Gold doesn't like to form ions. Gold is Au. ठीक है, gold doesn't like to form ions or lose electrons. Gold likes to remain as gold. ठीक है, so this is gold is very unreactive. वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता. लेकिन सोडियम is very reactive. Why? Because sodium, ठीक है, sodium is extremely reactive क्योंकि सोडियम easily इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है. तो जो भी नॉन मेटल आ रहा होता है, कोई भी आ रहा होता है, उसको वो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा होता है, ठीक है. सो इट्स वेरी रिएक्टिव. So how is a cell produced, an electrochemical cell? This you're going to take two metals and you're going to put them together. So here are your two metals, and let's say this is copper and this one is magnesium. अब आपने क्या करना है? आपने let's say ये बल्ब है बीच में, इसको लाइट अप करना है. मतलब आपकी जो नॉर्मल बैटरी होती है, रिमोट के सेल्स वो यही करते हैं, ठीक है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. सो हियर इज योर बल्ब इन द मिडल एंड यू वांट टू, पता नहीं फिजिक्स में यही निशान होता है बल्ब का, एंड यू वांट टू लाइट दिस अप. तो वायर के साथ कनेक्ट कर दो, राइट. कनेक्ट द टू मेटल्स विद अ वायर एंड दे शुड हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज. दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट है. अब पहले तो देखो कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, Mg और Cu. Who likes to lose electrons? So if you go back and you look at the Mg. reactive, huh? सर एमजी। Mg is higher up in the reactivity series. Mg likes to lose electrons. Cu is kind of at the bottom of the series. So और कॉपर की वायर्स आप बनाते हो, आपको पता है कॉपर इज अनरिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वरना आपकी वायर्स जो होती है वो सारी कब की खत्म हो चुकी होती, ठीक है, जो घरों में लगी हुई है. So is this clear? Minahil, Hamza, is this clear? Noor, clear? Yes, sir. अच्छा, so Mg is the more reactive one. Yes, sir. चलो ठीक है, Mg is the more reactive and it likes to lose electrons, right? It likes to really lose electrons. तो assume करो कि Mg इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर दिया उसने. इक्वेशन क्या होगी उसकी? Mg lost electrons, so it would form Mg2 plus ions क्योंकि it's in group 2, so it would lose the two outer electrons. Group 2 के outermost shell में 2 electrons होते हैं. So it would start losing a bunch of electrons. So all these electrons are getting produced. ठीक है, so you have lots and lots of electrons getting produced. Where would those electrons go? वो दूसरी साइड पर कॉपर है. कॉपर is less reactive. It doesn't like to lose electrons. तो eventually एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे कि they would
और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ साथ नहीं रहना चाहते, वो रिपेल करते हैं। तो अगर Mg इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जा रहा है, those electrons have to go somewhere, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल is going to, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, it's going to get pushed or repelled by the other electrons and it would flow through the wire to the other side. Is that clear? Rafiq, clear है? मरियम, clear है? Yes, sir. तो Yes, sir. अच्छा, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? दैट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी लेके ट्रैवल कर रहा है बल्ब के थ्रू, बल्ब को लाइट अप भी कर रहा है, एंड इट मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड। तो Mg just starts producing electrons, ठीक है, lots and lots of, because it's very reactive, and all these electrons they start traveling to the other side, ठीक है, they all start traveling to the other side। अब मसला ये, वो आगे जाए कहाँ? मतलब they don't have any place to go, वो बस यहाँ आके बैठ जाएंगे। तो करंट जो होगा वो फ्लो ना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो देयर वुडंट बी एनी फ्लो ऑफ करंट, मतलब शुरू में तो फ्लो करेगा थोड़ा सा, लेकिन इट वुड स्टॉप एंड द करंट वुड इमीडिएटली स्टॉप, राइट। ये बात समझ आइए कि मतलब Mg शुरू में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए दूसरी साइड पे जाते रहेंगे, पर वहां से वो कहाँ जाए? मतलब वो इस तरह के मतलब ट्रैफिक जैम हो जाएगी ना यहाँ पे, कि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो नो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लो। ये बात क्लियर है? हसन, क्लियर है? हमजा, इज दिस क्लियर? सर मतलब कि आगे से हो जाएंगे तो उससे पीछे का ताल्लुक है। मतलब अब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन अच्छा आनी, सही। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा ना, ठीक है। सही सही। हमजा, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, सो द इशू इज, अब इस सेल को चलाना है, हमें ये तो पता लग गया कि ये चल सकता है, हमें ये आइडिया हो गया कि अगर मैं मोर रिएक्टिव, कॉन्सेप्ट मिल गया कि मोर रिएक्टिव मेटल रखूंगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए बल्ब के थ्रू दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब वो सेल चलेगा नहीं, ये मसला है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे कहीं जाना चाहिए। तो इस साइड पे ना कोई चीज होनी चाहिए जो इनको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे, इट हैज टू बी देयर। तो आप क्या करते हो कि आप इस वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब द होल सेल शुड बी इन एन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके अंदर आयंस होते हैं। लेट्स से और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कर लो, लेट्स से देयर इज H2SO4। तो H2SO4 में कौन से आयंस होंगे? there's going to be H+1 and there's going to be SO4-2। तो H+1 जो है ना, वो लेट्स से यहाँ पे आए हुए हैं। तो H+1 क्या करेंगे कि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स उधर से भेजे, तो वो जो H+1 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे 1 second, and what would happen over here is, on this side is कि the H+1 वो डायटॉमिक होता है तो डबल पहले ही कर लेते हैं, वो H2 बना देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास वो मसला खत्म हो गया कि अगर इफ यू ऐड एन इलेक्ट्रोलाइट, इफ यू ऐड आयंस इन द सॉल्यूशन, तो the Mg would start producing electrons, electrons would travel to the other side, वायर के थ्रू बड़ी तेजी से वो दूसरी साइड पर ट्रैवल करेंगे, और वहां पे H+1 या कोई भी पॉजिटिव आयन बैठा होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ना कंज्यूम करना शुरू कर देगा, एंड इट वुड स्टार्ट रिमूविंग दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स हाउ हैविंग एन इलेक्ट्रोलाइट हेल्प्स। बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट खत्म भी हो जाता है कि H+1 खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए यू कीप ऑन एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट और सेल चलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट तक चलेगा, या तो Mg खत्म हो जाएगा, अगर Mg खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा। So is this point clear? Rafi clear है? Hamza clear है? Sir, we can सर take. Yes, sir. हाँ? Rafi क्या question है? Sir, we can take any acid like H2SO4 or any हाँ, acid. मतलब We ये have any electrolyte, ठीक है? There's no limitation as long as there is something in some ion in the solution that's able to gain electron, ठीक है? और हमने वो डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्योंकि ये Sir, I have an
What issue? Can you explain it? अच्छा मैं बस वो एक्सप्लेन कर रहा था, ये यहाँ तक नूर क्लियर था कि दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स रखोगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स अ लॉट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। अब इशू ये था कि दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहां पे जाके फंस जाएंगे, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल टू द अदर साइड, बट व्हेन दे गो टू द अदर साइड they need to be removed from that side, मतलब वो वरना और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आएंगे अगर वहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा ही नहीं रहे, तो you need an electrolyte in the solution, you need any ions, ठीक है, any acid or base or salt that has ions in solution in aqueous state, तो वो आप इधर रखोगे और वो इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करना शुरू कर देगा, तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट फ्लो करता रहेगा, a constant movement of charge would keep on happening. Noor, is this clear? Yes, sir. सर हाँ, सर आपने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो जाएगा? नहीं मैं ये कह रहा था कि सेल हमेशा खत्म क्यों हो जाते हैं, मतलब आपके रिमोट का सेल होता है, तो अच्छा वो काम करना बंद क्यों कर देता है, वो इसलिए कम कर देता है कि या तो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, मतलब आपको कोई चीज चाहिए ना जो सही है। कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है, हम्म। या फिर जो चीज इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है वो खत्म हो जाती है, सही है ठीक है, तो सही। Sir, यस when you wrote any electrolyte acids, bases, or salts, like for what do you do? For what do you mean? Like any electrolyte? like the solution could contain any positive ion, it's not just H plus one, anything, Oh, okay. Okay, sir. you just need a positive ion that removes the electrons from the other side, ठीक है। Okay, sir. Usually sulfuric acid होता है, ठीक है, most of the time it's sulfuric acid because sulfuric acid is kind of very cheap, लेकिन NaCl डाल सकते हो, you can add NaCl and it would happen, मतलब आपकी जो UPS की बैटरी है ना, they have sulfuric acid in it, car batteries also have sulfuric acid. So now the question is how can you draw more current, ठीक है, that's the question, वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अच्छा how can more current be अच्छा how can more current be drawn, ये पहले डिस्कस कर लो कि करना क्या है, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो mg से अगर मैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल रख लूं तो क्या होगा, और ज्यादा it would like to lose electrons even more, and if it's going to send more electrons, right? Is that clear? Hassan, Noor, clear है, राफे clear है, हमजा clear है, सर Yes. Yes, sir. हाँ हसन क्या हुआ है, सर रिएक्टिव मेटल होगा तो ज्यादा लूज करेगा, ये बोल रहे हैं? हाँ मतलब अगर और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो it would lose electrons even more, ठीक है, सही है। तो number one, that's the first thing that you could do, uh, increase the reactivity difference between the metals. अच्छा that's number one. अच्छा सेकंड है, या तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना इंक्रीज कर दो या यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो if I add more H plus 1 ions तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी से रिमूव होंगे, तो फ्लो भी ज्यादा जल्दी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर H plus 1 कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के फंस जाएंगे और वो आराम आराम से रिमूव होते रहेंगे, तो करंट फ्लो कम करेगा, ठीक है, इट वुड बी ए स्लोअर करंट, अगर आप H plus 1 ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी रिमूव होंगे, so that's the other thing. The second point is make the electrolyte more concentrated. अच्छा make the electrolyte more
concentrated. So there are two things that could be done to make the reaction. Sir, Yes. if a question like this comes, what will it be asking? I mean, the first thing is how can you draw more current? Yes, That's sir. number one. So you're going to write these two things, okay? Okay, sir. And you might be asked. I mean, we're going to do questions on this, okay? Okay, sir. The Sir, questions are going to be kind of very simple, okay? Okay, sir. So then a few more things. Remember, this is the negative side, and this is the positive side. The other side is the positive side. So you have a negative side and you have a positive side. The battery का जो terminal होता है plus minus होता है. So the negative is the more reactive side. That is the one that produces electrons. So the electrons over here, and they get attracted to the place where there are no electrons. So the electrons are flowing from the negative to the positive. Can you all hear me? आवाज आ रही है? Hello. hello, sir. हाँ, हसन आवाज आ रही है? जी सर, अटक के आ रही है. अभी क्लियर है? Yes sir. अच्छा, सर नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड. नीचे में बस 2-3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स flow from more reactive to less reactive metal. More reactive to less reactive side. Okay, and also remember that the more reactive metal is the negative, uh, that is the negative side. Is the negative potential. Is the negative side. Okay, so remember this as well. So that's pretty much it. That's a galvanic cell or an electrochemical cell. You need an electrolyte. Okay, you need two metals having a difference in reactivity, and if the difference in reactivity is large, then the current would flow very quickly. तो ये सारा है. Clear? Rafi, clear है? Hassan? Hamza, is this clear? सर एक ऐसी कंफ्यूजन हाँ. थी. सर पहला मेथड सही था इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, लेकिन दूसरे में अगर हम लोग कंसिडर कर देंगे H प्लस ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन जैम नहीं होंगे, लेकिन करंट कैसे बढ़ जाएगा? नहीं, अगर वो बेसिकली जैम तो वो फिर भी हो रहे होंगे ना. अगर कम होंगे, मतलब ये सोचो ना, अगर वो कम होंगे तो मतलब ऐसा सोचो ना, गाड़ियां चल रही है सड़क के ऊपर, आगे किसी ने बैरियर लगा दिए, तो पीछे वाली गाड़ियां सारी स्लो डाउन नहीं हो जाएंगी? अच्छा अच्छा, मतलब सही बैरियर सही. बैरियर लगाया हुआ है कि 80% कम है, तो वो एक एक करके ना 80% एक घूमता फिरता आ रहा है, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. अब 80% बढ़ा दोगे, मतलब तुम आगे से एग्जिट जो है ना वो बड़ा कर दो, तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने आना तो वहां से यहाँ आना ही है ना. पहले लाइन लगी हुई थी, अब वो स्पीड बढ़ अच्छा जाएगी. ठीक है ठीक है मतलब हाईवे पे क्या होता है ठीक है. कि एकदम से गाड़ियां तेज क्यों चलाना शुरू कर देते हो? क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं होता. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, एक और सिमिलर चीज है, और ये टोटल रट्टा लगाना है इसका. ठीक है. दैट इज, अच्छा, दैट इज एन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. So now hydrogen oxide fuel cell. What happens in this fuel cell? Remember concept ये, cell का concept क्या है कि एक side पे there's a reaction happening that produces electrons, and on the other side there's a reaction happening that's gaining electrons. वो produce करेगा, वो gain करेगा, electrons would start flowing. इधर से electrons आएंगे, उधर चले जाएंगे. ठीक है. That's the main concept. So the hydrogen oxide fuel cell runs on the same concept, that you have hydrogen gas and you have oxygen gas. ठीक है. So let's say
there are these two containers. And so these are your glass jars. There's hydrogen gas coming in, and there's oxygen gas coming in from the other side. Okay, and you have a container, and that container has an electrolyte. We don't care what the electrolyte is, as long as there is an electrolyte. So usually it's a dilute acid or a base or a salt. Can even be a salt. Anyways, it just contains this. The electrolyte contains ions, mainly H+1 and OH-1 ions. I said now there are two electrodes that are dipped into this, and the electrodes are made out of platinum. So the two platinum electrodes that are dipped into this thing that we have just drawn, and let's say there's a bulb in the middle, and we want the bulb to light up. So the wires are connected to this bulb, and we want this to light up. Uh, Now what happens in this is that there's going to be a reaction that's going to take place. On this side, a reaction happens where H2 reacts with the OH ions that are in the solution, and they form two water molecules, right? And it releases two electrons. And on the other side, you again have a similar reaction where you have O2 reacting with two H2Os, ends up gaining 4 electrons, and ends up forming 4 OH ions. Okay, so I'm just going to explain the reactions. Okay, just quickly explaining the reactions. And remember, this is mostly memorization. Okay, so there are two random reactions happening, and these reactions could have been any reaction. Okay, we don't care. So there's a reaction that's happening that is producing electrons. Hydrogen is coming in, and hydrogen reacts with the OH ions that are in the solution. There's a reaction happens, and as a result, water is produced, and 2 electrons are produced. तो इस साइड पे क्या हो रहा है? इस साइड पे हो रहा है कि the number of electrons it starts to increase. Electrons are getting produced. ये जो रिएक्शन है ना, इसका तो रटा लगाना है, ठीक है? और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की जगह कोई और रिएक्शन भी हो, any reaction that produces electrons, ठीक है? So you're making a reaction happen over here, and that reaction produces electrons. Is that point clear? Hassan, clear है? Hamza, Noor, clear है? जी सर। Yes, sir. Can you अच्छा। repeat, sir? मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में ना एक तरफ से हाइड्रोजन पंप कर रहे हो, दूसरी साइड से ऑक्सीजन पंप कर रहे हो. What I'm saying is, I mean, this reaction is not important. It could have been any reaction. ठीक है? You just have to memorize this particular reaction. कि reaction happens कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आती है ना, तो वो solution के अंदर ना there is OH ions. मतलब सॉरी, ये मुझे OH ions यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी H+1 होंगे, ठीक है? They would be everywhere. सर जब हाँ, बोले एनी रिएक्शंस, वो क्या मतलब? कि मतलब फ्यूल सेल्स बहुत सारे किस्मों के होते हैं. मतलब आपके पास, अच्छा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा होते हैं। हाँ, मतलब बैटरी लेने जाओ तो हजारों किस्मों की बैटरी होती है ना, अच्छा, सही है और सर, सही। हजारों टेक्नोलॉजीज होती हैं. बेसिकली बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम ये कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने चाहिए और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर फ्लो करें. ठीक है, बैटरी ने ये करना है. तो सही। बैटरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट क्या होती है? मतलब आप वो AAA का सेल लेते हो, आप किसी और कंपनी का सेल लेते हो, कोई लिथियम आयन बैटरी होती है, कोई कुछ और होती है. End result ये होता है कि there's a reaction that happens on one side which produces electrons, and there's a reaction that happens on the other side, and that side gains electrons. ठीक है?
पूरी कहानी ये। तो मैं ये कह रहा हूँ ये रिएक्शन इररिलेवेंट है, ठीक है, आपको बस ये रिएक्शन याद रखना है कि there's a reaction that's happening over here that produces electrons and there's a reaction that happens at the other end जहाँ पे ऑक्सीजन गैस आती है, वो वाटर के साथ मिलकर ना 4 electrons gain करती है and ends up forming 4 OH ions. तो a reaction happens over here that gains electrons. राफे समझ आइए बात? ठीक है, और ये एग्जैक्टली इसी तरह है। इधर भी तो यही हो रहा था ना कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो दूसरी साइड पे एक रिएक्शन हो रहा था जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था। मतलब वो Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा था और H+1 जाके गेन कर रहा था। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल, एक्सेप्ट कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे एंड ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टार्ट टू फ्लो टू दी अदर साइड, और जहां पे वो गेन करता रहेगा, ऑक्सीजन गैस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती रहेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. ठीक है, सर वो तो इलेक्ट्रोड के दैट्स बीच में काला काला क्या है? क्या चीज? सर इलेक्ट्रोड के बीच में ब्लैक वंस क्या है? इलेक्ट्रोड के बीच में है जी सर। ये इलेक्ट्रोड है ना, मतलब कनेक्शन है ना, बैटरी का टर्मिनल नहीं होता, अच्छा मतलब ये आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ, ये जो ग्रीन वाला था ना, ये गैस जार था, अच्छा क्योंकि ये मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड हाँ बोले तो मतलब ये ये क्या है? जी सर। ऑक्सीजन गैस आ रही थी, इलेक्ट्रोड एक्चुअली ये है जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका फायदा क्या है। एक तो ये चीज पूरी याद रखनी है, ठीक है, दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड। और इसकी शक्ल डायग्राम की ना डिफरेंट हो सकती है, इट वुड चेंज। तो शक्ल पे ना जाओ, एक शक्ल ये है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइड पे ये रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, दूसरी साइड पे ये रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, वो दूसरी साइड पे जाएंगे और गेन होंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा होगा। इनकी शक्लें जो मर्जी उसने बनाई हुई है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ रही होंगी। द ओवरऑल रिएक्शन, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड करो ना, द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस थिंग। मतलब ये आप ना वर्किंग कर लो, दोनों को ऐड करके देख लो, लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर लो, एंड में ना ये आता है कि H2 और O2 जो है ना वो आपस में रिएक्ट करें एंड दे फॉर्मिंग 2H2O। सो दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ये है कि नंबर वन इज कि इट्स पोल्यूशन फ्री, और रिन्यूएबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज कर रहा है, जबकि दूसरे जो फ्यूल्स होते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं वो रिन्यूएबल होती हैं, ठीक है, उसके अंदर इसी तरह के हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स यूज हो रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस आर कि इट्स एक्सपेंसिव, तो इसलिए आपकी जो हाइब्रिड कार्स होती हैं दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। ऑयल जो है ना वो बड़ा चीप है। और सेकंड इज के सेकंड क्या डिसएडवांटेज है, एक तो एक्सपेंसिव हो गया, नहीं बस वही है, एक्सपेंसिव ही है, ठीक है, दैट्स द ओनली वन। तो क्लियर है सारों को ये? नूर क्लियर है? राफे, हमजा क्लियर है? Yes, sir. Yes, हसन sir. क्लियर? सर तो फिर आखिर में पानी बन रहा है। हाँ, मतलब पोल्यूशन फ्री है, सही। ठीक है, वाटर इज प्रोड्यूस्ड और रिन्यूएबल है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिन्यूएबल चीजें हैं, ठीक है, इट्स ओके सर ओके। वो मतलब आप वाटर में से रिमूव कर सकते हैं। और द अदर थिंग इज कि बस डिसएडवांटेज ये कि एक्सपेंसिव है। और क्या तो हमने जो चीजें पढ़ी है ना अभी वो ये कि हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
जिसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। बस उसमें ये होता है कि दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स आप कनेक्ट कर देते हो। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दैट इज द वन दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स, और वो फिर दूसरी साइड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और उसका हमने पढ़ा है कि हाउ कैन यू हैव मोर करंट, हाउ कैन यू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, वो सारी बातें पढ़ी। तो खैर वी डन विद इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने पास पेपर्स करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है? क्लियर है सही सारा? है सर। बाकी जो चीजें Yes, फिर sir. चलो बाकी जो चीजें फिर उसी के अंदर फिर हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर अगर हो सके पास से भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, भेज देता हूँ अभी, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah हाफिज, Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।